جی وعلیکم السلام شمبناز، آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز۔ آپ لوگوں کو آواز اور بورڈ کلیئر آ رہی ہے؟ اوکے، چلے تو آج جو ہم لوگ بات کریں گے وہ کریں گے قصیدے کے۔ ایک سیکنڈ۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے قصیدے کے نقاش اول کے۔ ٹھیک ہے، قصیدے کے نقاش اول۔ ٹھیک ہے، سب کو پتا ہے نقاش کسے کہتے ہیں؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے قصیدے کا نقاش کسے کہتے ہیں، یا نقاش کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قصیدے کا نقاش یا نقاش کسے کہتے ہیں؟ ہاں، قصیدے کا نقشہ کھینچنے کا کام کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات بہت باریکی سے کہی جائے، اور اگر ہم اسے کہیں تو اسے کہتے ہیں چترکاری۔ ٹھیک ہے، چترکاری۔ تو قصیدے کی جو چترکاری ہے، یا جو قصیدے کا سب سے بڑا چترکار ہے، وہ کس کو کہا گیا ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا کو کہا گیا ہے۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ کہی ہے مصحفی نے۔ اور مصحفی کا پورا نام آپ لوگوں کو پتا ہوگا، غلام حمدانی مصحفی۔ ٹھیک ہے، ایگزام میں یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ غلام حمدانی مصحفی سے سودا کی ملاقات کتنی بار ہوئی؟ سودا سے ملاقات کتنی بار ہوئی؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے مصحفی کی یا سودا کی ملاقات مصحفی سے کتنی بار ہوئی؟ مصحفی سے کتنی بار ہوئی؟ آپشن دے دیتا ہوں میں آپ کو، 1، 2، 3 اور 4۔ یہ آپشن ہے 1، 2، 3 اور 4۔ کتنی بار ملاقات ہوئی؟ فریدہ نے بتایا ہے 3 بار۔ اوکے، اور بتائیے۔ دیکھیں آپشن مل جاتا ہے تب تو بتانا لازمی ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو ملاقات ہوئی ہے 1 بار، لیکن ارادہ کیا تھا 2 بار۔ جب پہلی بار گئے تھے ملنے مصحفی سے سودا تو ملاقات نہیں ہو پائی تھی، لیکن جب دوسری بار گئے تو دوسری بار کیا ہو گیا، ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو 2 بار ملنے کی کوشش کی ہے، لیکن ملاقات جو ہے وہ 1 ہی بار ہوئی ہے۔ اور کہاں پر ہوئی ہے؟ لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ لکھنؤ میں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے مرزا محمد رفیع سودا کی جو پیدائش ہے وہ دہلی میں ہوئی ہے۔ کہاں پر ہوئی ہے؟ دہلی میں۔ کب؟ 1713 میں یا 1712 میں؟ پیدائش ہوئی ہے 1713 یا 1712 میں۔ ان کی وفات کی بات کریں تو وفات ہوئی ہے 1781، 1781 میں۔ کہاں پر؟ لکھنؤ میں۔ اور کس وجہ سے ہوئی ہے تو لکھ دینا، آم کھانے کی وجہ سے۔ آم کھانے کی وجہ سے جو کیا ہوئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے۔ آم کھانے کی وجہ سے ان کی کیا ہوئی ہے؟ وفات ہوئی ہے۔ اور ان کو لکھنؤ کس نے بلایا تھا، اور یہ کیوں گئے تھے، کس کے ساتھ گئے تھے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کی ہم کلاس میں کریں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ان کی سمری ہوئی ان کی حالات زندگی کی ابتدا میں۔ اور جب بات کرتی ہے حالات زندگی پہ تو سب سے پہلا نام آتا ہے والد کا، کہ ان کے والد کا کیا نام تھا۔ تو ان کے جو والد تھے وہ کیا تھے؟ سوداگر تھے۔ ٹھیک ہے، سوداگر یعنی کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت کی غرض سے ہی وہ کہاں سے آئے تھے؟ کابل سے آئے تھے۔ کابل میں بھی کہاں تھا؟ بخارا۔ کابل میں بھی کہاں سے؟ بخارا۔ یہ بخارا سے تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے، اور ان کے نام کیا تھا؟
मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद सफ़ी। और इस सौदागर की वजह से ही मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने अपना तखल्लुस रखा सौदा। अपने वालिद के पेशे से ही उन्होंने क्या रखा, अपना तखल्लुस रखा सौदा, और पूरा नाम पड़ गया उनका मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इब्तिदाई तालीम जो है इन्होंने घर पे ही हासिल की, इब्तिदाई तालीम जो है इन्होंने घर पे ही हासिल की। और अपनी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत इन्होंने गज़ल गोई से की। अपनी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत गज़ल गोई से की। और गज़ल भी किस ज़बान में कही, फ़ारसी ज़बान में कही। गज़ल भी किस ज़बान में कही, फ़ारसी ज़बान में कही। और अपना पहला फ़ारसी कलाम दिखाया सुलेमान सुलेमान कुली खां, सुलेमान कुली खां वदाद को। अपना फ़ारसी कलाम इन्होंने सुलेमान कुली खां को दिखाया, जो गज़ल गोई में था। लेकिन वहीं पर गज़ल गोई के में ही सुलेमान कुली खां वदा के बाद इन्होंने फ़ारसी में ही क्या की, अपनी और शायरी को और अच्छा बनाने के लिए इन्होंने शागिर्दी इख्तियार की। किसकी, खान आरज़ू की। किसकी, खान आरज़ू की। जो किसके उस्ताद थे, सौदा से पहले मीर के भी, सौदा के बाद मीर के भी उस्ताद रहे। सौदा और मीर दोनों के खान आरज़ू थे। कोई बच्चा बता सकता है खान आरज़ू का असल नाम क्या था? खान आरज़ू का असल नाम या पूरा नाम क्या था? मैंने आपको लिखवाया है। हाँ, एक बच्चा बता रहा है सिर्फ अभी तक। वेरी गुड। सिराजुद्दीन अली खान आरज़ू, ये उनका क्या था, पूरा नाम था खान आरज़ू का। लेकिन इसी के बाद एक और शायर हुए हैं या एक और मुसन्निफ हुए हैं, आपको पता होगा, शाह हातिम। शाह हातिम ने ही इनको यानी कि सौदा को उर्दू में शायरी का मशवरा दिया, उर्दू में शायरी का मशवरा दिया। और उसके बाद ही ये किस पर आए, कसीदा गो पे। उसके बाद ही ये किस पर आए, कसीदा गो पे। और कसीदा गो में ही इन्होंने जो है वो सबसे बड़ा नाम कायम किया, या सबसे बड़ा नाम जो है वो कमाया, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है वो बहुत लोगों से इनकी क्या थी, अदबी चश्मक भी रही। और अदबी चश्मक में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है मीर ज़ाहिद का। मीर ज़ाहिद जो किसके वालिद थे, मीर हसन के वालिद थे। और मीर हसन किसके वालिद थे, मीर खलीक के। और मीर खलीक किसके वालिद थे, मीर अनीस के। और मीर अनीस किसके वालिद थे, सलीस, नफीस और जलीस। ये तीनों जो हैं वो आप लोग याद रख लेना, ये पूरी है। एक शेर भी आपने सुना होगा, क्या से शेर हो, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। इस तरह से एक शेर है जो मरसिया के ताल्लुक से है, क्योंकि मीर तक वो सौदा ने मरसिया भी कहे हैं, सौदा ने मरसिया भी कहे हैं। और मरसिया को एक हैयत बख्शी है, मरसिया को एक हैयत बख्शी है, एक नई हैयत से क्या कराया है, रूबरू कराया है। और उस हैयत को हम लोग क्या कहते हैं, मुसद्दस। क्या कहते हैं, मुसद्दस। एग्जाम में बहुत बात पूछा गया है कि मरसिया को मुसद्दस की हैयत किसने बख्शी, तो आंसर हो जाएगा आपका मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और इन्होंने तकरीबन 91 यानी कि 91 मरसी लिखे हैं, 91 मरसी लिखे हैं, जो कुलियात सौदा में क्या है, शामिल है। ठीक है, जो कुलियात सौदा में क्या है, शामिल है। कुलियात सौदा किसने तज़किर ओ किसने तरतीब दिया, कब दिया, उसको हम लोग जो है वो आगे की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ये वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। कुलियात सौदा को मुरतब किया था
मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी ने, मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी ने। और इन्होंने जो है वो सौदा के जो कसीदे हैं, सौदा के जो कसीदे हैं उनकी तादाद बताई है 46। इसी में ही एक और इनका इंतखाब सौदा है, इंतखाब सौदा, जिसमें इसको मुरतब किया है रशीद हसन ने, रशीद हसन खान ने। उसमें सौदा के जो कसीदों की तादाद है वो कितनी बताई है, वो बताइए 41 के आसपास, 41 के आसपास जो है उन्होंने क्या बताई है, इसकी तादाद बताई है। सॉरी 41 नहीं 45 है, 41 तो इसमें बताई गई है, लेकिन जो 5 कसीदे हैं उसके बारे में मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी को भी थोड़ा सा डाउट है। इंतखाब सौदा में 45 है, ठीक है। इनके अलावा बाज लोगों ने जो है वो सौदा के जो कसीदे हैं वो 39 भी बताए हैं, बाज लोगों ने, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो इस बारे में जो है वो बहुत से लोगों में क्या है, इख्तलाफात हैं, और इख्तलाफात जो है वो रहते ही रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये दिल्ली में रहे, और यहाँ पर जो है वो इनके बेटे का नाम भी अक्सर पूछ लिया जाता है, वो है गुलाम हैदर महजूब, गुलाम हैदर महजूब, ये क्या है, इनके बेटे का नाम है गुलाम हैदर महजूब। तो जब यहाँ पे ये मशहूर होने लगे दिल्ली में, तो दिल्ली में, और आपको पता है नादिर शाह अब्दाली ने जो है वो दिल्ली को जो है वो काफी बार लूटा है, और उसको जो है वो काफी बार तबाह बर्बाद किया, लेकिन उसके बाद भी जो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा है वो क्या रहे, दिल्ली में ही रहे। लेकिन जब हालात ज़्यादा से ज़्यादा बदतर होने लगे 1759 यानी कि 1759 में, जब यहाँ पे हुकूमत थी आलम शाह सानी की, या कह सकते हैं इमादुल मलिक आलमगीर, आलमगीर सानी की, और इसी के ज़माने में दिल्ली में एक राजा हुए थे जिनका नाम था सूरजमल या सूरजमल जाट, सूरजमल जाट। तो 1759 में इमादुल मलिक आलमगीर सानी के दौर में जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया, अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया, तो उसी के डर से मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा सूरजमल जाट के साथ, किसके साथ, सूरजमल जाट जो एक नवाब थे उनके साथ जो है वो कहाँ चले गए, फर्रुखाबाद चले गए। कहाँ चले गए, फर्रुखाबाद। कब गए, फर्रुखाबाद 1759 में फर्रुखाबाद चले गए, ठीक है। और यहाँ पर आकर अपने गुजर बसर करने के लिए नवाब नवाब मेहरबा खां, नवाब मेहरबा खां रंध, नवाब मेहर नवाब मेहरबा, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड, नवाब मेहरबा खां रंध, ये पूरा नाम है। इनके यहाँ पे जो है वो इन्होंने क्या कर लिया, काम किया नवाब मेहरबा खां रंध के यहाँ पे फर्रुखाबाद पे, ठीक है। और फर्रुखाबाद में ही यहीं पर ये जो है वो काफी दिन तक रहे, और उसके बाद जो है वो 1771 के आसपास ये कहाँ चले गए, फैजाबाद। कहाँ चले गए, फैजाबाद। 1771 के आसपास ये कहाँ चले गए, फैजाबाद में रहे। और कहा जाता है कि इसी दौरान जो लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे जिनका नाम था शुजाउद्दौला, उनकी खयाती इतनी मकबूल हो गई कि नवाब शुजाउद्दौला जो है वो चाहते थे कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा मेरे दरबार से क्या हो जाए, वाबिस्ता हो जाए। इसीलिए उन्होंने जो है उनके नाम पे क्या लिखा, एक खत लिखा, जिसको हम लोग कहते हैं बिरादर मन, बिरादर मन मुशफिक मन, मुशफिक
मन। ये लिखा किसने? नवाब शुजाउद्दौला ने। किसके लिए लिखा? सौदा के लिए लिखा कि आप जो है वो हमारे पास आ जाइए, हम आपको एक अच्छी तनख्वाह और अच्छा कारोबार देंगे। ठीक है। और 200 रुपये की क्या की पेशकश की कि मैं आपको 200 रुपये महावाना दूंगा, आप मेरे यहाँ पे आके क्या हो जाइए, मंसलिक हो जाइए, या मेरे दरबार से जो है वो जुड़ जाइए। लेकिन उन्होंने, यानी कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने क्या किया, उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसे हालात हुए कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को क्या हुआ, जाना पड़ गया। तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा कब लखनऊ आए, तो ध्यान रखना आसिफुद्दौला के जमाने में, आसिफुद्दौला के जमाने में लखनऊ आए, या आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ आए। और यहाँ पर इनको 6,000 रुपये सालाना उस वक़्त के तनख्वाह मिलने लगी। 6,000 रुपये सालाना, यह कह सकते हैं वजीफा मिलने लगा। अगर पूछा जाए वजीफा कह सकते हैं या सैलरी कह सकते हैं। 6,000 रुपये सालाना इनको जो है वो यहाँ पर काम मिलने लगा। इनके अलावा भी ये और बहुत सारे दरबारों से वाबस्ता रहे। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दरबार से जो है वो ये जुड़ गए हैं, बहुत सारे दरबारों से ये क्या रहे, इनका ताल्लुक रहा है। और इन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ों में क्या की है, तब आजमाई भी की है। अगर हम बात करें कि किस किस से जो है वो वाबस्ता रहे दरबारों में, तो ये है मोहम्मद शाह, जो मुगलिया है, मोहम्मद शाह के दरबार से वाबस्ता रहे। इसके बाद बसंत अली खां, छोटे छोटे हैं ये, बसंत अली खां, इनके दरबार से भी वाबस्ता रहे। इसके बाद सैफुद्दौला, सैफुद्दौला इनके दरबार से वाबस्ता रहे। इसके बाद अहमद अली खां बहादुर, अहमद अली खां बहादुर, ये भी छोटे से नवाब रहे, इनके दरबार से वाबस्ता रहे। इसके बाद नवाब गाजिउद्दीन, नवाब गाजिउद्दीन, ठीक है, ये छोटे छोटे नवाब हैं, इनसे इनका ताल्लुक रहा है, ये इनके दरबार में वाबस्ता भी रहे। लेकिन जो अहम है वो शुजाउद्दौला है और आसिफुद्दौला है और सूरजमल जाट है। इनसे इनके जो है वो ताल्लुक ज़्यादा रहे। और यहीं पर ही आसिफुद्दौला के दरबार में रहते हुए ये जो है वो आम खाने के बहुत शौकीन थे। और यहीं पर जो है वो इनकी क्या हो गई, वफात हो गई 1781 में, 1781 में, 1781 में। और इनकी उम्र तब कितनी थी, तकरीबन 76 साल थी। अगर कभी कभी इसकी हिजरी पूछ ले तो लिख लेना 1195 ईस्वी, 1195 ईस्वी में। और ये फसल यानी कि आम खाने की वजह से क्या हो गए, मर गए। ठीक है, ये इनके कुछ हालात जिंदगी है जो इन्होंने जो है वो इधर से उधर जाके जो है वो काटी। ठीक है। और इनको बात करें कि इनको जो है वो कुत्ते और कुतिया पालने का बहुत शौक था, कुत्ते और कुतिया पालने का बहुत शौक था। और वो भी किस रंग के थे, सफेद रंग के, सफेद रंग के कुत्ते और कुतिया पालने का बहुत शौक था। और इसीलिए इनकी इन हरकतों की वजह से मीर ने जो है वो इन पे तनकीद की है। ये कह सकते हैं मीर ने इन पे क्या कहा है, जो कहा है। एग्जाम में एक बार और सवाल आता है कि मीर ने अपने दीवान में या दीवान अव्वल में, यानी कि पहले दीवान में मीर का जिक्र कितनी मर्तबा किया है, तो 3 बार किया है। मीर ने अपने दीवान में यानी कि दीवान अव्वल में कितने बार जिक्र किया है, 3 बार जिक्र किया। और इसमें ही एक बार का जिक्र जो है वो अहम है, और वो है जब उन्होंने सौदा को जाहिल कहा था। क्या कहा था, सौदा को जाहिल कहा था। तो उसी के जवाब में मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने एक मिसरा कहा था जो मैंने आपको लिखवाया है। ना पढ़ियो, इस तरीके से था वो, ना पढ़ियो शेर मीर के आगे, वो नज़म जाने या अंदाज़े बयां क्या जाने। इस तरीके से सौदा ने क्या कहा था, इसके बारे में कहा था। ठीक है। और लेकिन ये दोनों एक ही उस्ताद के थे, तो इसलिए इनमें जो है वो
कम अदबी चश्मक थी, लेकिन ज्यादा जो अदबी चश्मक रही है मीर की, वो सौदा की, वो मीर जाहिक से रही है, ज्यादातर, ज्यादा सा। और इनको जो है वो हिजो का बानी भी कहा जाता है, हिजो का बानी भी कहा जाता है। किसको? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को। और हिजो में जो है इनके दो कसीदे जो है वो बहुत मशहूर हैं। पहला है तजहीक रोजगार, पहला है तजहीक रोजगार, और दूसरा है हिजो फेल, और दूसरा है हिजो फेल। ये दोनों कसीदे जो है वो इनके क्या हैं, बड़े मशहूर हैं। ठीक है, बड़े मशहूर हैं। तजहीक रोजगार आपको पता है किसकी मदा में है, वो किसकी हिजो में है? घोड़े की। और घोड़ा भी किसका था? उनके एक दोस्त का था। और वो कौन सा दोस्त था वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बेटा, मीर ने सौदा का जिक्र 3 बार अपने दीवाने अव्वल में कहा है। उन 3 बार में एक बार सौदा को जाहिल कहा है, एक बार जाहिल कहा है, एक बार जो है उसको मलिकुश शोरा कहा है, और एक बार शायद उन्होंने जब 3.25 शायर कहे हैं उसका जिक्र है। ठीक। तो तजहीक रोजगार लिखने की क्या बात हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तजहीक रोजगार, एक बार मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को कहीं जाना था, तो उन्होंने, उनका एक दोस्त था जो बहुत सारे क्या करता था, अरबी घोड़े पालता था। और जहाँ घोड़ों को रखा जाता है वहां पर कौन सी जगह थी, मतलब जहाँ घोड़ों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। तो उस वक्त जो घोड़ा है वो सवारी के लिए बहुत आला माना जाता था, बहुत अच्छा माना जाता था। जैसे आज के ज़माने में हवाई जहाज को, हवाई जहाज को एक अच्छा साधन माना जाता है उड़ने का या सफ़र करने का। तो मुझे बताइए, जहाँ पर हवाई जहाज को खड़ा किया जाता है, मतलब जब उसमें सवारी उतार ली जाती है, उसे रिपेयर के लिए जहाँ पे रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे? ऑप्शन तो मैं दे दूंगा, चलिए दे दीजिएगा ऑप्शन, कोई बात नहीं। ए, बी, सी और डी। वन वर्ड्स में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, पहला बोलते हैं स्टैंड, दूसरा बोलते हैं यार्ड, तीसरा बोलते हैं हैंगर, और चौथा बोल देते हैं एरोस्पेस, एयर स्पेस, सॉरी, एरोस्पेस कह रहा, एयर स्पेस। स्टैंड, यार्ड, हैंगर और एयर स्पेस। मोहम्मद शौकीर ने बताया है यार्ड, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, फिरदौस ने बताया सी, शहना खातून ने बताया सी। ओके, बाकी लोग बताइए। वकील, शौकीर, विजारत, शाहिद, बाकी लोग भी बताइए। सर वापस दोहरा देना प्लीज। बेटा, जहां पर हवाई जहाज को खड़ा किया जाता है, ठीक है, जैसे पार्किंग होती है, कि भाई जब आप अपने घर में जाते हैं तो आप पार्किंग की जगह एक मुतय्यन की है, गाड़ी की, कार की पार्किंग कर देते हैं, तो उसे तो हम पार्किंग कहते हैं। तो इसी तरह से जब हवाई जहाज, एरोप्लेन सवारी उतारने के बाद खड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, शाबाश, उसे कहते हैं हम लोग हैंगर। याद रख लेना, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। यार्ड बोलते हैं किसे, जहां पर ट्रेन खड़ी होती है, और स्टैंड जहां पर बाइक या बाइसिकल खड़ी होती है, या जब हॉर्स राइडिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है,
तो जहां पर लोग बैठ के उस हॉर्स राइडिंग को देखते हैं उसे भी स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट में होता है पवेलियन। ठीक है, पवेलियन, ये कुछ एक एक लफ्ज के जो है वो क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है जो एग्जाम में बहुत काम आते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक, इस तरीके से। तो सौदा ने जो है वो अपने दोस्त से घोड़ा मांगा, तो उसके पास बहुत सारे अरबी घोड़े थे, लेकिन दिल्ली में खाने पीने की कमी होने की वजह से उसके जो है वो सारे घोड़े या तो कमजोर हो गए थे या उसने बेच दिए थे। तो ले दे के उसके पास बस एक ही घोड़ा बचा था। क्या बचा था? एक ही घोड़ा बचा था। तो जब सौदा मांगने गए तो उसने कहा, अपने घोड़े की माली हालत को बताया। तो उसी से मुतासिर होके मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने घोड़े की शक्ल में या घोड़े के मद्देनजर रखते हुए मुगली हुकूमत की क्या किया, मजम्मत की, कि किसी तरह से मुगली हुकूमत की वो नजरों में ना आए। इसी तरह से एक और इनका कसीदा था हिजो फेल। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किसकी हिजो में है, तो ये था हाथी की। इसमें ये हाथी की मधा हाथी की हिजो में था। और मैंने जब आपको गजल पढ़ाई थी तब बताया था कि किस शायर को हाथी जो है वो तोहफे में मिला था। तोहफे में मिला था हाँ, मोमिन खां मोमिन को मिला था। और किसने दिया था? और किसने दिया था? उस राजा का नाम बताइए, किसने दिया था? बिल्कुल, फरीदा ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड बेटा। राजा अजीत सिंह ने दिया था। गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो है वो फारसी में वो उर्दू कसीदे में जो है क्या कर ली, बुनियाद डाली हिजो निगारी की। और भी है इनके हिजो, अगर हम बात करें इनके जो हिजो कसीदे हैं जो इन्होंने सिर्फ हिजो हिजो कही है, उनकी तादाद 36 है। ये उनके हिजो के कसीदे हैं। जो मैंने आपको बताया वो अलग तरीके के कसीदे हैं, और ये वाले जो हैं हिजो कसीदे जो हैं वो अलग कसीदे हैं। अगर हम इन पे थोड़ी सी नज़र डाल के बात करें कि जो इनके और कसीदे हैं जो मैंने आपको लिखवाए इंतखाब सौदा में, और यह हम बात करें कुलियात सौदा में। ठीक है, इंतखाब सौदा जो है उसमें अलग कसीदे बताए गए हैं, और कुलियात सौदा में जो है वो अलग बताए गए हैं। तो इसमें जो है वो जो इंतखाब सौदा है वो किसने मुरतब किया है? रशीद हसन खान ने। और जो कुलियात सौदा है वो किया है किसने? मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी ने। मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी ने। और इन्होंने जो है वो कसीदे की जो तादाद है वो अलग अलग बताई है इनकी। जैसे मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी ने कितने बताई है? 46 बताई है। और इन 46 में भी 41 पर उनको पूरा एतमाद है कि 41 सौदा के ही हैं, 5 में उनको जो है वो डाउट है। वहीं अगर हम बात करें रशीद हसन खां की, इन्होंने जो तादाद बताई है वो बताई है 45, 45। और इन कसीदों को ये जो 45 बताए हैं 3 इदवार में तकसीम किया है। 3 इदवार में तकसीम किया है, यानी कि इनके सौदा को समझने के लिए उन्हें 3 इदवार में तकसीम किया है, या 3 तरह के कसीदे जो है उनको बयान किए गए हैं। जो पहला हिस्सा है या पहला दौर है उसमें 14 कसीदे हैं, और ये 14 के 14 किस में लिखे गए हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में या उनसे ताल्लुक लोगों के शान में लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे हजरत फातिमा हुई, हजरत अली हुए, और दिगर लोगों के बारे में इसमें है। तो आप लिख सकते हैं मोहम्मद, मोहम्मद के बारे में, या मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबी लिख लीजिएगा, या उनके जो लोग ताल्लुक रखते हैं उनके ताल्लुक से जो इन्होंने 14 लिखे हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है या दूसरा जो दौर मानते हैं उसमें है 25, 25। और ये कैसे हैं? ये हैं बादशाहों की मदा में या बादशाहों की हिजों में। ठीक है, जितने भी ये उनके लोगों से
वाबिस्ता रहे हैं दरबार से, जो मैंने आपको अभी लिखवाए थे। जैसे बसंत अली खां आपको लिखवाया, ठीक है। इसके बाद ये जो है आसिफुद्दौला से रहे, शुजाउद्दौला से भी इन्होंने फैज़ उठाया, सैफुद्दौला से भी जो है इन्होंने दरबार से वाबिस्ता रहे। तो जितने भी दरबार से वाबिस्ता रहे उनकी हिजों में या उनकी मदह में इन्होंने 25 कहे। इसके बाद दो कसीदे और हैं जो इस तीसरे में हम लोग शामिल करते हैं, वो है समाजी एतबार से, ठीक है। समाजी एतबार से इनके दो कसीदे हैं जो समाज की हालत पर इन्होंने क्या डाली है, रोशनी डाली है, रोशनी डाली है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग सौदा के बारे में बात करते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि सौदा ने गजल में तब आजमाई की है, ठीक है। इसके बाद कसीदे में, मरसिए में, रुबाइयों में, या इनके इन्होंने जो है वो हर जगह से क्या की है, तब आजमाई की है। मरसिया कितने लिखे मैंने आपको पहले बताया था, 91 मरसिया लिखे। इसके बाद इन्होंने जो रुबाई लिखी है या रुबाइयात लिखी, उनकी जो तादाद है वो है 80, उनकी जो तादाद है वो है 80, ठीक है। इनका एक कसीदा बहुत मशहूर है, स्टार बना के लिख लेना, शायद मैंने वो आपको कल नहीं लिखवाया था, वो है बाबुल जन्नत, बाबुल जन्नत। और ये किसकी मदह में है, हजरत अली की मदह में, हजरत अली की मदह में है। ये इनका एक बहुत ही मशहूर कसीदा माना जाता है, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। और कसीदे में कहा जाता है कि इन्होंने जो फैज़ उठाया है या इन्होंने जो शुरुआत की है कसीदे में, वो फारसी कसीदा गो से की है, जिसमें खाकानी, अनवरी, खाकानी, अनवरी, उर्फी और ज़हूरी, ये फारसी के कसीदा गो हैं। कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो इनसे फैज़ उठाया है ज़्यादातर। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं, ख़ास तौर पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि मौर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इन चारों से कसीदे में कहीं आगे हैं, इन चारों से कसीदे में कहीं आगे हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, खाकानी, अनवरी, उर्फी और ज़हूरी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? यहाँ से कोई दिक्कत आप लोगों को? यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, ओके। इनका इसके बाद एक और कसीदा बहुत मशहूर है जिसका नाम है शहर आसूब। कसीदा है शहर आसूब। शहर आसूब जो है सिन्फ भी होती है एक, लेकिन यहाँ पे जो है वो कसीदा भी है शहर आसूब। और मैंने इनके जो कसीदे हैं वो आपको कल लिखवा दिए थे, इसीलिए ताकि उसमें जो है वो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। बाकी आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो आपको जो है वो और उसमें मिल जाएंगे, और उसमें जो है वो मिल जाएंगे। और कसीदे में बेटा वो तो अलग अलग सबकी अलग अलग राय है, हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी के बेस से, ठीक है। और इसीलिए अपने इन कसीदों की जो चार नाम लिखवाए हैं, खाकानी, अनवरी, उर्फी और ज़हूरी, इसी तरह से कसीदा कहते हैं, या सौदा ने अपने बारे में खुद लिखा है कि मेरे शायरी के उस्ताद भी चार हैं, क्योंकि इनका मुकाबला जो है वो चार लोगों से किया गया है, जैसे खाकानी, अनवरी, उर्फी और ज़हूरी। तो इसलिए इन्होंने अपने भी शायरी के उस्ताद चार बताए हैं, जैसे पहले खान आरजू, दूसरे शाह हातिम, और तीसरे जिससे इन्होंने इब्तिदा में तालीम हासिल की थी, सुलेमान, कुली, खां, वदाद और एक साने। इन चार लोगों को इन्होंने जो है वो अपना क्या बताया है, उस्ताद बताया, ठीक है।
कौन? ये चारों जो है वो इन्होंने अपने शायरी के उस्ताद बताए हैं मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा ने। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ और तसनीफें हैं एग्जाम के हवाले से, जैसे मसनवी भी इन्होंने जो है वो तब आजमाई की है। ठीक है, मसनवी भी, और मसनवी भी इन्होंने भी हिजों में ही लिखी है ज्यादातर। इनकी एक वाहिद मसनवी है जो इश्क पर लिखी गई है। इनकी एक वाहिद मसनवी है जो इन्होंने इश्क पे लिखी है। कोई बच्चा बता सकता है उसका नाम? एक वाहिद, एक वाहिद इनकी इश्क या मसनवी है। बाकी सारी जो है वो क्या है, हिजियो ही है। अगर नहीं पता तो लिख लीजिएगा, मसनवी किस्सा दर, मसनवी किस्सा दर इश्क पशर, मसनवी किस्सा दर इश्क पशर, शीशाए गर, ये उस मसनवी का नाम है जो इनकी एक इकलौती वाहिद इश्क मसनवी है। वाहिद इश्क मसनवी है। किस्सा दर इश्क पसर शीशाए गर, ये इकलौती इनकी इश्क मसनवी है। हालांकि इनकी अगर पूरी मसनवी की बात की जाए तादाद में, तो तादाद में इनकी मसनवी है 24। 24, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आती है। बस आप लोग इसको ही जो है वो याद रख लीजिएगा। और ये जो बताई है कि इनकी मसनवियाँ 24 है, ये किसने बताई है? तो ध्यान रखना, ज्ञान चंद जैन ने। ज्ञान चंद जैन के मुताबिक इनकी जो मसनवियाँ हैं वो 24 हैं, वो 24 है। इसके बाद इनका एक रिसाला है जिसका नाम है इबरतुल गाफिलीन। इबरतुल गाफिलीन, इबरतुल गाफिलीन, ये इनका एक रिसाला है सौदा का। और ये कैसा रिसाला है? फारसी नस्र में लिखा गया, फारसी नस्र में लिखा गया एक रिसाला है। जो कैसा रिसाला है? जवाबी रिसाला है। और ये किसके जवाब में लिखा था? ये लिखा था मिर्जा फाखिर मकी के जवाब में। मिर्जा फाखिर मकीन के जवाब में ये इन्होंने रिसाला निकाला था। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल था? तो 5 मंजिल पर यह मुश्तमिल था, या 5 फसलों पर मुश्तमिल था। इबरतुल गाफिलीन, इबरतुल गाफिलीन। इसके अलावा एक और रिसाला है जिसका नाम है शोलाए इश्क। शोलाए इश्क, ये अभी तक दस्तयाब नहीं हुआ है कि एक ऐसा रिसाला है, सिर्फ मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसके बारे में जिक्र किया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसी के बारे में जिक्र किया, लेकिन ये अभी तक जो है वो मिला नहीं है। शोलाए इश्क सिर्फ जिक्र हुआ है, लेकिन ये रिसाला है किसका? शोलाए इश्क मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का। ठीक है, इसके बाद इनका एक उर्दू का दीवान भी मिलता है, सिर्फ मिलता है। तो इसके भी कोई हमारे पास ठोस नमूने नहीं है या कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये दीवान उर्दू सौदा का ही है। सिर्फ लोगों में इस बात की क्या है, अफवाह है। क्या है? अफवाह है। ठीक, ये इनके मुतालिक कुछ चीजें हैं। और कहते हैं कि सौदा को उर्दू अदब में, सौदा को उर्दू अदब में वही काम या वही ओहदा मिलता है, वही ओहदा मिलता है जो अंग्रेजी में, जो अंग्रेजी में ड्राइडन को मिला है। ड्राइडन,
آپ لوگوں نے پڑھا ہے ڈرائیڈن کو؟ ڈرائیڈن جو ہے وہ کیا ہے؟ کرٹیسزم کرتے ہیں، یعنی کہ تنقید کرتے ہیں، یا ایک طریقے سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہجو. تو ہجو میں سودا کو ڈرائیڈن مانا گیا ہے. کس میں مانا گیا ہے؟ ڈرائیڈن میں. اور یہ بات ان کی عشقیہ مثنوی جو ہے، جو میں نے آپ کو لکھوایا، قصہ در پشر شیشہ گر میں بیان کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ ان کے متعلق کچھ قول ہیں، کچھ اقوال ہیں، وہ آپ لوگ لکھ لیجئے گا. جیسے میں نے آپ کو شروعات میں جب کلاس شروع کی تھی تو وہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھا نقاش اول کہا ہے سودا کو. کس نے کہا ہے؟ غلام حمدانی مصحفی نے کہا ہے. غلام حمدانی مصحفی نے کہا. اس کے بعد میر نے، یعنی کہ میر تقی میر نے، میر تقی میر نے کیا کہا ہے؟ سر آمد شورائے ہندی، سر آمد شورائے ہندی. یہ کس کو کہا ہے؟ یہ بھی سودا کو کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ میر تقی میر نے کہا. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ، اور اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، امداد امام عصر. اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا. یہ والا کول اکثر پوچھا گیا ہے ایگزام میں، امداد امام عصر کا. میں بول رہا ہوں، آپ لوگ لکھ لیجیے گا. اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا. اگر سودا نہ ہوتے، اگر سودا نہ ہوتے، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدہ کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا. اردو قصیدے میں اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا. یہ بات کہی ہے کس نے؟ امداد امام عصر نے. امداد امام عصر نے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا مرزا علی لطف کا. مرزا علی لطف کا ان کا ایک تذکرہ ہے جس کا نام ہے گلشن ہند. کوئی بچہ بتا سکتا ہے مرزا علی لطف نے گلشن ہند کب لکھا؟ مرزا علی لطف نے گلشن ہند کب لکھا؟ ایئر بتانا ہے. آپشن دوں آپ لوگوں کو؟ آپشن چاہیے؟ فریدہ، شوقین، شہناز، شاہد اقبال، شان خاتون. آواز پہنچ پا رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ہاں، آپشن لے لیجیے گا، کوئی دقت نہیں. 1801، 1802، 1803 اور 1804. بالکل، شوقی نے صحیح بتایا، 1801. اور کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ جان گل کرسٹ کی فرمائش پر لکھا تھا. سوری، جان گل کرسٹ کی فرمائش پر. اور دھیان رکھنا مرزا علی لطف کا گلشن ہند لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے جو اردو زبان میں لکھا گیا. اردو زبان کا پہلا تذکرہ، اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایگزام میں جو ہے وہ اکثر پوچھا جاتا ہے. تو مرزا علی لطف نے اپنے تذکرہ گلشن ہند میں کہا ہے قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا. قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا. مرزا سودا پر ہوا. قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا. یہ بات کہی ہے مرزا علی لطف نے اپنے تذکرے گلشن ہند میں. ٹھیک ہے، گلشن ہند میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور لکھ لیجیے گا، ہاں، عبدالسلام ندوی کا.
ठीक। अब्दुलसलाम नदवी, इनका भी एक कौल है और वो है उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सर खेल है। उर्दू कसीदा निगारों में, उर्दू कसीदा निगारों में, उर्दू कसीदा निगारों में सबके सरखेल हैं। सरखेल यानी कि सबसे ऊंचे हैं, सरखेल हैं। ये किसने कहा है? इब्दाम अब्दुल सलाम नदवी ने कहा है। अब्दुल सलाम नदवी ने कहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तो बताइए किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद एक और लिख लीजिएगा, तबस्सुम काश्मीरी का, तबस्सुम काश्मीरी का, तबस्सुम काश्मीरी का एक कौल है। सौदा की शायरी, सौदा की शायरी में गजल, सौदा की शायरी में गजल की देवमाला, देवमाला का मखसूस मंजरनामा नजर आता है। देवमाला का मखसूस मखसूस मंजरनामा, मखसूस मंजरनामा नजर आता है। सौदा की शायरी में गजल की देवमाला का मखसूस मंजर नजर आता है। ठीक, ये बात किसने कही है? ये बात कही है तबस्सुम काश्मीरी ने। इसके बाद मीर हसन, शहरुल बयान वाले मीर हसन ने सौदा की कसीदा को कहा है, या मीर हसन ने सौदा को, मीर हसन ने सौदा को कसीदा व हिजो, सौदा को कसीदा व हिजो में साहिब यद बेजा कहा है। साहिब यद बेजा यानी कि सौदा के अलावा कोई और उनका सानी नहीं है। सौदा को कसीदा व हिजो में साहिब यद बेजा कहा है, यानी कि उनका कोई सानी नहीं है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। ठीक है, सर दरियाए लिताफत और एक उर्दू जुबान की कवायद की किताब, इसमें कंफ्यूज है। मैं समझा नहीं बेटा। जो दरियाए लताफत है वो उर्दू कवायद की पहली किताब है, उर्दू कवायद की पहली किताब है। कब लिखी गई? 1801 में। किसने लिखी? इंशा अल्लाह खां इंशा ने। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये उर्दू कवायद जो लिखी वो उसकी जबान फारसी है। ठीक, जैसे मान के चलिए मैंने कोई नाम यहाँ पे लिख दिया है इस तरीके से, ये नाम है एक। कोई बता सकता है आप में से कि ये नाम किसका है? आप जबान समझ सकते हैं कि ये जो जबान मैंने लिखी है वो चीन की है, ये चीनी जबान है। क्योंकि चीनी जबान में सबसे ज्यादा हरूफ तहजी हैं, सबसे ज्यादा अल्फाबेट है, तकरीबन 400 प्लस के आसपास। जो हमारे यहाँ पे 26 हैं
52 है और 36 या 38 है, इस तरीके से। नहीं बेटा फरीदा, ये तो मैंने आपका नाम लिखा है। ये तो फरीदा लिखा हुआ है, मेरी स्क्रीन पर यही नाम आ रहा था और आपका ही लिखा गया है। स्क्रीन पर आपके नाम आया तो यही मैंने लिख दिया आपको, तो आपको भी समझ में नहीं आया, मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो 2 अक्षर में खत्म हो जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आया? नहीं आया होगा क्योंकि आप नहीं जानते। तो इसी तरह से वो इसलिए समझ में नहीं आती, लिखी तो वो उर्दू कवायद पे है लेकिन उसकी जबान फारसी है। ठीक, और इसी पर जो है वो एक अकबर इलाहाबादी का एक बहुत बड़ा मशहूर किस्सा है चीनी एतबार से। तो उनसे किसी ने पूछा, मियाँ तुम जब अंग्रेजी को इतनी खराब जबान मानते हो, क्या तुम चीनी में भी शायरी कर सकते हो? तो अकबर इलाहाबादी ने कहा, हाँ मैं कर तो सकता हूँ लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने 2-3 अल्फाज चीनी के बोले तो उस वाकई में समझ में नहीं आई। तो बात वही है, ये फरीदा भी नहीं लिखा हुआ। कभी आप लोग सोच रहे हैं कि फरीदा लिखा हुआ है, या फरीदा भी नहीं है। कभी वो जाके सर्च करे कि सर ने तो ऐसे लिखवाया था नाम, वो तो बस मैंने लिख दिया, स्क्रीन पर नाम आ रहा था तो लिख दिया वो ऐसे। ठीक, मुझे चाइनीज नहीं आती है बेटा। ठीक, इस तरीके से। तो वो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना हो तो मौलवी अब्दुल हक की किताब है उर्दू कवायद, उर्दू कवायद वो सबसे शानदार किताब है, वो वाली पढ़ लीजिएगा, मौलवी अब्दुल हक की, बस। ठीक है, तो सौदा हमारे कसीदे में सबसे बड़े शायर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सौदा ही सबसे बड़े शायर हो। अपना एक अलग अलग मायार है, अपना एक अलग अलग हुनर है, अपने पास एक फसाहत है, अपने पास एक सादगी है। तो उसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है शेख इब्राहिम ज़ोक। शेख इब्राहिम ज़ोक, जिसको हम सौदा के बाद सबसे अहम शायर मानते हैं कसीदे का। तो जब हम लोग आपसे कल मुलाकात करेंगे तो हम बात करेंगे शेख इब्राहिम ज़ोक के हवाले से। ठीक, किसी का कोई डाउट हो आज की क्लास में तो पूछ सकता है, अदरवाइज आज की क्लास जो है वो इतनी ही है। ओके, फिर मिलते हैं आप लोग उसी पर।